got engaged and this is my engagement ring. Let me just give you a close look of my engagement ring. Can you guys see how beautiful this is? How pretty my hands look with this ring. It's been 15 days since my engagement is over and I keep on staring on my hands like forever. I keep on like clicking pictures, unlimited pictures of my hand, keep on posting on Instagram. Like I'm so obsessed about this ring. And मैं इस वीडियो के बाद मैं इसे निकाल के रख दूंगी because I don't trust myself कहीं से मेरी ही नजर ना लग जाए. So yeah, I'm engaged and it feels a little weird to say that because I'm not used to it. But anyways, this video is not about that. This video is about my engagement preparation. मैंने अपनी engagement के 2 दिन पहले से vlog करना start कर दिया था about my preparation and all. So now I'm going to roll the clip of 2 days before my engagement and I hope you guys enjoy watching the vlog. Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing good. So today is 25th of June and my engagement is on 27th of June and it's 4 p.m. already and we're supposed to complete our photo shoot by now. Like we schedule our photo shoot like जो engagement के hall के बाहर जो ऐसे welcome board होता है ना वहाँ पे जो photo लगने वाला था we were supposed to click that today but that plan got cancelled because आज दिन भर बारिश हो रही है and अभी तक बारिश ही हो रही है, ये रुकने का नाम भी नहीं ले रही है. And I was supposed to wear a sari for this photo shoot but I did not क्योंकि अभी फोटोशूट होगा नहीं पता. सो आई वॉर दिस लाइक वेरी ब्यूटीफुल पिंक कुर्ती, वेरी पिंक कलर का कुर्ती. पहली बार मैं इसे पहन रही हूँ. मिंत्रा से मैंने लाइक ऑर्डर किया था कुछ दिन पहले, तो आई रियली लाइक द कुर्ती. सो आई वॉट दिस लाइक me and my fiance we decided that we will go out and we will try clicking our own photo. If it turn out to be good then we will give that for the poster or else like एक अच्छी इंस्टाग्राम वर्दी फ़ोटो आ जाएगा. लाइक आई एम वेरी सैड ड्यू टू दैट बिकॉज ये बारिश बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था एंड अगर like we never thought of this like if we thought of this like then हम पहले से ही photoshoot complete कर देते. And a lot of task is pending like my mehendi is pending, my nail extension nail art is pending and मुझे blouse लेने जाना है अपनी outfit का and a lot of thing is pending. Like we have to do shopping today also, so for that I got ready and I'm waiting for my fiance. He will come and he will pick me up and we will like figure out what we will do with this photo shoot and everything. And this is how the weather is today you guys. So we almost cancelled the photo shoot plan क्योंकि अभी तो नहीं होगा and वो जो लाइटिंग है वो भी चली जाएगी लाइक 15 मिनट में. सो कैंसल द फोटो शूट एंड नाउ वी विल गो टू शॉपिंग एंड टू कंप्लीट अदर टास्क एंड आई एम सो सैड अबाउट दिस. लाइक द वेदर इज सो गुड बट आई एम अनेबल टू एन्जॉय दिस. So we can only wait for the rain to stop so that we can go out. Anyways, we can't do anything about the rain, so I'm stuck in my home. I received this Myntra ka parcel. Let's just unbox it together. It's something related to my engagement. Okay, so this is a clutch I have ordered for my engagement day and I will carry this when I wear my engagement outfit. So yeah, so this is how it looks. This is so pretty you guys. I mean, oh my god, this is really pretty. And let me just open it. Okay, so they have given this holder kind of thing to like get it attached and they have also given this sling. तो ये sling bag की तरह भी काम करेगा and like this also and I'm going to carry like this by attaching these and it's so pretty you guys. I'm so happy.
Okay, you guys, I changed my outfit because all of my plans got cancelled due to the rain, and it's 6:30, and I got ready to go to Esplanade. There, I will do some shopping, and hopefully, I will get some good mehendi artists there. So for my mehendi, because जिस mehendi artist को मैंने finalize किया था, I had to go to his studio for the mehendi, but क्योंकि अभी वो बहुत दूर है and in this rain I can't go, so that's why I'm trying to find some good mehendi artist nearby me, and hopefully I find that, and later I will go to collect my blouse, and that's the plan for now. So let's see. I have like booked the Rapido because my fiance could not come to my home due to the rain. Again, he will meet me in the midway, so that's the plan. Okay, so we went to Esplanade, पर वहाँ पर ऐसे कुछ काम हुआ नहीं, and तब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी, तो we went out to complete our other task. तो इसके बाद मैं गई थी अपना एंगेजमेंट साड़ी की ब्लाउज कलेक्ट करने के लिए, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू गाइज माय एंगेजमेंट आउटफिट स्टोरी, बिकॉज आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक, जिससे मुझे बहुत लॉस झेलना पड़ा, लाइक कि मेरे 2 ऐसे आउटफिट वेस्ट हो गए एंड बहुत पैसा भी खर्च हो गया. तो दैट्स व्हाई आई वांट टू शेयर द स्टोरी विथ यू गाइज, सो दैट यू गाइज डोंट मेक द सेम मिस्टेक एज आई डिड. सो फर्स्ट, फ्रॉम द डे वी न्यू कि मी एंड माई फियांसे न्यू हमारा एंगेजमेंट इस दिन होने वाला है, 2 महीना बाकी था तब तक, तो we were very excited, and me and my fiance are very impulsive people. Okay, we just like make impulsive decision and we buy stuff, we spend so much money. One Sunday we went out to have our lunch and I asked him can we go to Queen's Collection, क्योंकि बहुत पास में था Queen's Collection, and I promised him I will not buy any outfit. तो जब से मतलब एंगेजमेंट की डेट फिक्स हुई थी, मेरे माइंड में हमेशा लाइक ये था कि आई विल बी अ साड़ी ब्राइड, लाइक मैं अपनी एंगेजमेंट में साड़ी पहनूंगी, ठीक है. तो इसीलिए हम लाइक क्वींस कलेक्शन गए, सो दैट जस्ट टू लाइक चेक देयर कलेक्शन व्हाट इज गोइंग ऑन. एंड फ्रॉम द मोमेंट आई एंटर्ड, मैं यही सोच के गई थी कि मुझे कुछ खरीदना नहीं है, मुझे सिर्फ कलेक्शन देखना है. एंड हाँ, उससे पहले मैं मान्यवर भी गई थी, पर मुझे मान्यवर में मतलब बहुत सारे साड़ी पसंद आए थे, पर वो मेरे बजट के बहुत बाहर थे, तो इसलिए आई वेंट टू क्वींस कलेक्शन. एंड मैं एंटर करते ही मुझे बहुत सारे साड़ी बहुत अच्छे लगे, एंड सब कुछ मेरे बजट के अंदर ही आ रहा था. एंड आई लुक टू वन साड़ी विच इज़ रेड इन कलर, एंड आई वॉज लाइक I want this saree right now, and I asked my fiance can I get it, and he also liked it. And without like telling my mom, my mother-in-law and my sister, we purchased the saree. Okay, and and I came back home, I saw my sister the saree, and which was like pure red in color, like blood red in color. And because I'm a fair skin girly, मुझे लग रहा था कि red मुझे बहुत अच्छा लगेगा, but the moment my sister saw the saree, उसने मुझे बोला कि if you wear red color in your engagement, then what will you wear in your like main day, शादी की day. तो my mother also told the same thing, and my mother-in-law also told the same thing कि red नहीं पहनना चाहिए, you should go for some pastel color, some pink color. तो मुझे ऐसा लगा कि like why everyone is like opposing my decision, like. And now I'm at a point I literally share my emotion and my like thought process, everything ChatGPT. And I asked ChatGPT, hey ChatGPT, why can't I wear a red saree on my engagement day? And ChatGPT also confirmed that yes you can wear, because red is very normal bride color. But then 2 दिन बीत गए, like एवरीवन वॉज नॉट हैप्पी विद द साड़ी, बिकॉज ये बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरत साड़ी था, मतलब सबको बहुत पसंद आया, पर सिर्फ वो रेड कलर में था, इसीलिए सब मतलब थोड़ा सा ऐसे पसंद नहीं कर रहे थे. एंड मुझे भी उस साड़ी से मतलब मन भर गया था, तो आई वेंट अगेन टू क्वींस कलेक्शन टू लाइक एक्सचेंज द साड़ी. हमें 7 दिन का टाइम दिया गया था टू एक्सचेंज माई साड़ी. So I went to Queen's Collection, and I exchanged the sari with a very very beautiful, very gorgeous pink color ka sari, like a baby pink color ka sari. Okay, and let me just tell you that is also my not final engagement outfit. Lot of things happened after that, but let me tell you about the sari. That is like such a gorgeous sari, and that is more beautiful than the red one. And वो मुझे बहुत ज़्यादा costly भी पड़ा, like the sari costed me I think 12,000. and मुझे लगा कि हाँ ठीक है,
तो मैंने ले लिया वो साड़ी एक्स्ट्रा कुछ पैसे दे के। रेड साड़ी जो था वो 7,000 का था, मैंने एक्स्ट्रा 5,000 दिया, सो दैट वो 12,000 की साड़ी मैंने खरीद लिया। एंड आई वॉज लाइक फुली फाइनलाइज कि हाँ अभी मैं ये लाइक पिंक कलर की साड़ी पहनूंगी, ठीक है। तो फिर मी एंड माई फियांसे वेंट ऑन शॉपिंग फॉर हीज शेरवानी एंड ही परचेस्ड अ मैचिंग शेरवानी विथ माई लाइक पिंक साड़ी, and his sherwani is done and he never changed the outfit. Okay, boys are like very sorted when it comes to like outfit, where they are like they don't care. I mean they पता नहीं उनको एक आउटफिट अच्छा लगता है एंड वही पिक कर लेते हैं। उन्हें मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो दूसरी कोई आउटफिट देखे, वो दूसरी कोई जगह पे जाके देखे या फिर कहीं पे देखे। दे आर लाइक वेरी सॉर्टेड पीपल एंड आई एम लाइक रियली जेलस ऑफ माई फियांसे बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मैंने इतना स्ट्रगल किया है अपनी एंगेजमेंट आउटफिट के लिए। तो लाइक आफ्टर आई बॉट माई साड़ी आई शुड हैव स्टॉप्ड यूजिंग इंस्टाग्राम। ओके, मुझे इंस्टाग्राम में इतने सारे लाइक ब्राइड के एंगेजमेंट ब्राइड के रील्स आए, एवरीवन वाज वेयरिंग लाइक लहंगा। And one of my friend told me like कि Swapna, you can wear sari like throughout your life, but you will get very few chances to wear lehenga from now onwards. Like why you are not going with lehenga? And I was like, okay, I will be a lehenga bride. I changed my mind. Everyone was like, why? Like out of nowhere you wanted to wear a sari, but now you changed your mind. So I was like, no, this is like this is a one-time opportunity for me. I'm going to get engaged for the one time in my entire life. I want to wear a lehenga. And I impulsively like went to a store called Amru, which is very like near to my home. Again with my fiance, we went to gym subah, and again I promised my fiance that listen, I will not buy anything. I will just go and see their collection. And guess what? I entered Amru, and if you are from Bhubaneswar or from Odisha, I highly recommend that store, क्योंकि बहुत अच्छे लाइक कलेक्शन है उनके पास और वो रेंटल में भी देते हैं। एंड बहुत प्यारे प्यारे लहंगे थे और मेरे बजट के अंदर ही थे सब कुछ। तो मैं गई और मुझे बहुत सारे ऐसे एंगेजमेंट के आउटफिट पसंद आए एंड आई कॉल माई मदर एंड माई मदर इन लॉ एंड बोथ आर लाइक हाँ ठीक है, उसे इतना मनी है लहंगा पहनने के लिए तो let her buy it. And everyone was okay, like okay, buy it. And I bought one like very like beautiful, it's such a dreamy lehenga. अच्छे थे, मतलब प्राइस के हिसाब से बहुत ही प्यारा लहंगा था एंड या बहुत खूबसूरत लहंगा। आफ्टर दैट मैंने उस लहंगे को मैच करके अपनी ज्वेलरी भी खरीद लिया एंड वो जो ज्वेलरी दैट कॉस्टेड मी ₹7,000। लाइक 7,000 लहंगा के लिए मैंने 7,000 रुपीज़ की ऐसी ज्वेलरी खरीदी जिसको मैं बाद में शायद कभी ना पहनूं। ठीक है, हमारे उड़ीसा में ना ऐसे पूजा होता है, लाइक द रिंग एक्सचेंज इज नॉट द मेन थिंग। लाइक हमें लाइक लड़की और लड़की के पापा एंड लड़के के पापा वो बैठते हैं एंड पूजा होता है एंड देयर आई विल सिट। जो ग्रूम होता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, वो ही जस्ट हैव टू बी देयर टू फॉर द रिंग एक्सचेंज एंड एवरीथिंग इज टू डू विद द लड़की। तो लाइक माई मदर इन लॉ सी टोल्ड मी, सी काइंड ऑफ लाइक रिक्वेस्टेड दैट कि लाइक you should like wear a sari for the puja only and for the ring exchange you can like wear a lehenga. But the problem is कि हमारे जो मुहूर्त था, मतलब कोई टाइम निकलता है पूजा के लिए, तो वो निकला था 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, ठीक है, लंच टाइम के बीच में। तो लाइक इफ़ आई वेयर अ साड़ी राइट लाइक एट दैट टाइम 1 बजे तक एंड 2 बजे तक, मतलब 1 बजे तक पूजा ख़त्म हो जाती है, तो at 1:30 I will have to again restyle my lehenga which I will wear for just 1 hour because people going to start leaving from 2:30 or 3 max. Okay, so I was in like very confusion. I first told her that no I can't like because मेरी जो स्टाइलिस्ट है वो नहीं रहेगी राइट दिन भर, तो वो सिर्फ लाइक सुबह आ जाएगी एंड मुझे तैयार करके चली जाएगी एंड ज्वेलरी ऑल्सो विल बी डिफरेंट फॉर साड़ी एंड लहंगा। सो
आई वॉज इन बिग कन्फ्यूजन हाउ आई विल गोइंग टू मैनेज ऑल दिस, क्योंकि अगर सुबह सुबह पूजा हो जाता तो मतलब ये बहुत आसान होता मेरे लिए, पर जो मुहूर्त निकला था तो इसीलिए ये बहुत ही लाइक कॉम्प्लिकेटेड था। तो लाइक ओके, आई थॉट कि देखा जाएगा जो होगा। ऑन 18th of June माई इन लॉज केम टू विजिट मी एंड माई फैमिली, एंड ऑन दैट डे वी वर सपोज टू बाय आवर एंगेजमेंट रिंग, क्योंकि एंगेजमेंट की जो रिंग की साइज है वो थोड़ा सा डिफर होता है, तो दे वांटेड कि मतलब हम मिलके खरीदेंगे सो दैट कि इट विल बी परफेक्ट साइज। सो ऑन 18th of June वी वेंट ऑन लाइक ज्वेलरी शॉपिंग, एंड हमारे उड़ीसा में ना ऐसा होता है कि मतलब जो लड़के वाले हैं वो लड़की को एक मतलब साड़ी गिफ्ट करते हैं, वो साड़ी पूजा होता है, ठीक है। तो ऑन दैट डे दे डिसाइडेड कि दे विल लाइक बाय दैट साड़ी फॉर मी, दैट पूजा वाला साड़ी फॉर मी, एंड सो वी वेंट अगेन टू क्वींस कलेक्शन, and me, my didi, my mother and my mother-in-law, my father-in-law and my family also went there to buy my sari. तो उस टाइम ऐसा कुछ मतलब डिसीजन नहीं था कि मतलब जो साड़ी खरीदेंगे वही पहनूंगी मैं अपने एंगेजमेंट में। तब तक मतलब हम सबको मतलब यही लग रहा था कि मैं लहंगा पहनूंगी, ठीक है। तो वी सॉ द साड़ी, ओके, माई एंगेजमेंट साड़ी, एंड एवरीवन लाइक्ड इट। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे साड़ी में इतना मतलब नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरह का साड़ी कैसे दिखेगा। आई एम नॉट दैट लाइक experienced with that stuff. So my mother and mother-in-law was like what a साड़ी, मतलब इतना प्यारा साड़ी, and my sister is like ये बहुत ही खूबसूरत है। Everyone saw the साड़ी and got very emotional and they like literally told me you will have to wear this साड़ी, and I was like very shocked क्योंकि मैं तब तक सोच रही थी कि मैं लहंगा पहनूंगी एंड ये वो, पर एवरीवन वाज लाइक तुम यही साड़ी पहनना क्योंकि ये इतनी प्यारी लग रही है तुम पे। तो आई कुड नॉट से नो। तो मैंने ये बोला कि ठीक है, अगर मैं साड़ी पहनूंगी तो साड़ी पहनूंगी, अगर मैं लहंगा पहनूंगी तो लहंगा पहनूंगी, मैं बीच में चेंज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो दे वर लाइक ओके वियर दिस साड़ी। तो तब था लाइक 18th of June, ठीक है, मेरा एंगेजमेंट था 27th of June। तो बीच में हमारे पास सिर्फ था लाइक कितना 9 days, ठीक है। तो हमने लाइक 19th को अपना डे वेस्ट कर दिया, मुझे बहुत सारा ऑफिस का काम था। तो फिर वी वेंट आउट ऑन 20 टू फाइंड माई लाइक टेलर, जो बुटीक है वहाँ पे अपना ब्लाउज बनाने के लिए साड़ी का, क्योंकि रेडीमेड ब्लाउज मैंने सर्च किया मतलब डिफरेंट प्लेसेस जाके, बट अच्छा नहीं मिल रहा था, बहुत बेकार था। तो इतनी अच्छी साड़ी को मैं ऐसे रेडीमेड ब्लाउज के साथ नहीं पहनना चाहती थी। तो इसीलिए लाइक वी सर्च फॉर डिफरेंट बुटीक हु कैन मेक अ ब्लाउज इन लाइक 5 days। दे कैन मेक अ लाइक सिंपल ब्लाउज इन 5 days, बट जिस तरह का ब्लाउज मैं बनाना चाहती थी, आई विल लाइक पोस्ट सम पिक्चर लाइक पिक्चर्स हियर एंड हियर सो दैट यू कैन सी। मैं बहुत ही मतलब ऐसे मगम वर्क शायद उसको बोलते हैं, मैं उस तरह का ब्लाउज बनाना चाहती थी, पर nobody was like ready for to make that blouse in just 5 days, okay। everyone was like increasing the price, and मुझे तो एक जन ने बोला कि वो 12,000 को like लेगी एक ब्लाउज बनाने के लिए, and I was like no, I'm not going to make it। and मिनिमम 8,000 बोल रहे थे, ठीक है, जो मतलब ऐसे खराब बुटीक थे वो बोल रहे थे कि मिनिमम 8,000 में बनाएंगे, एंड उसका रिव्यू भी बहुत ख़राब था। एंड थैंक गॉड मैंने उस बुटीक में नहीं दिया अपना ब्लाउज। तो आई वॉज लाइक वेरी लाइक अगेन अब मैं क्या करूँ, शायद आई विल हैव टू गो विथ माई लहंगा। आई टोल्ड दिस टू माई मदर इन लॉ। सी हैज़ अ फ्रेंड जो कि बुटीक में काम करती है। सी डजंट ओन अ बुटीक, ओके, सी वर्क्स इन अ बुटीक। तो मेरे मदर इन लॉ ने बोला कि हाँ मैं उसको बोलूँगी तो वो बना देगी। तो आई लाइक सी टॉक टू हर एंड सी वॉज ओके विथ लाइक मेकिंग इट इन 5 days। तो मैं उनके पास गई, आई गेव हर द मेजरमेंट अगेन, आई टोल्ड हर टू मेक अ ब्लाउज लाइक दिस, बट सी टोल्ड मी नो, सी कांट मेक it, and it will cost again like minimum 8,000 rupees, and in 5 days she won't be able to like create that blouse। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, मतलब एट दैट टाइम मैंने अपना माइंड बना लिया था कि ठीक है मैं साड़ी ही पहनूंगी। तो इसीलिए आई वॉज लाइक ठीक है आपको जैसे बनाना है बना दो, पर थोड़ा सा ऐसे फैंसी लगना चाहिए। तो आई विल पोस्ट सम लाइक पिक्चर्स ऑफ माई ब्लाउज, हाउ
it was made maybe in the last of the video, in the end of the video. Okay, so that is the story. She agreed to make the blouse in just 5 days and she did a fabulous job. इस जो फिटिंग थी वो ब्लाउज़ की वो बहुत ही प्यारी आई थी एंड थैंक गॉड मैं एंगेजमेंट के 2 दिन पहले उनके पास गई टू टू लाइक ट्राई द ब्लाउज ऑन. तो पहले मैंने ट्राई किया एंड मैंने कुछ चेंजेस भी करवाए, ऑल्टर भी करवाया वो उस ब्लाउज़ में. एंड या मैंने जो एंगेजमेंट की ब्लाउज़ है वो फाइनली तैयार था एंड आई वॉज लाइक फुल्ली स्ट्रेस्ड अबाउट दैट. मैं लिटरली, क्योंकि मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ एंड माई मदर इन लॉ नो सर, बट मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ तो इसलिए आई वॉज वेरी डाउटफुल. ठीक है, मतलब वो अच्छे से बनाएगी नहीं बनाएगी एंड आई एम समवन लाइक आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन. अगर वो अच्छे से नहीं बनाएगी भी ना तो मैं अपनी मतलब इन लॉज के मन रखने के लिए मैं वो पहन लेती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. सी इज़ अ वेरी फैबुलस लाइक टेलर. शी डिड अ वेरी वेरी फैबुलस जॉब. सी मेड माई एंगेजमेंट का जो ब्लाउज सच लाइक pretty blouse and I'm like very satisfied with the blouse. So yeah, that's the story of my engagement outfit and I would like to like suggest or advise anyone who is a bride to be whose engagement or marriage is going to happen. तो आप लोग अपने इन लॉज के साथ डिस्कस कर लो कि कौन कौन सी इवेंट में क्या क्या पहनना है. ऑफ कोर्स पूजा में आप लहंगा पहन नहीं सकते हो एंड अगर आपको लहंगा पहनने की कोई मतलब इच्छा है तो आप पहले से बता दो, या फिर इफ़ यू गाइज डिस्कस इट प्रीवियसली देन मेरे जितने खर्चे हुए हैं तो उतना नहीं होता. एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट जब मैंने एंगेजमेंट साड़ी खरीदा उसके लिए मुझे अलग से मतलब अपनी ज्वेलरी खरीदना पड़ा विच अगेन कॉस्टेड मी ₹5,000. सो आई थिंक ये सब जो हैवी ज्वेलरी है ना मैं वो बाद में नहीं पहनने वाली हूँ, तो मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं यूज़ होगा. ठीक है, तो एक ही एंगेजमेंट के लिए मेरे 2 ऐसे आउटफिट रह गए बिना पहन के एंड एक अच्छा वाला जो ज्वेलरी सेट है वो भी रह गया बिना पहन के. एंड अगेन लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड राइट. सो आप लोग ये सब पहले से डिस्कस कर लो, ऐसा impulsive decision mat lena. So yeah, that's the story and now I will going to roll the clip of what happened then after collecting the blouse. I directly went for my मेहंदी क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी लाइक अराउंड 9:30 एंड मेहंदी वाले भैया 10 बजे तक अपना स्टूडियो बंद करने वाले थे. तो आई रश टू द मेहंदी एंड मुझे मेहंदी के लिए लाइक बहुत ही बेसिक बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन चाहिए था. मुझे फुल हैंड वाले मेहंदी बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी बिकॉज़ मेरी साड़ी बहुत हैवी थी. तो इसलिए आई चोज़ अ वेरी सिंपल वन फ्रॉम पिंटरेस्ट and it took me around like 30 minutes to complete my mehendi and my mehendi turned out to be like super pretty. देन वी वेंट टू दिस प्लेस फॉर डिनर क्योंकि हमने इवनिंग से कुछ भी नहीं खाया था एंड हम दोनों को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी तो वी हैड आवर डिनर देयर. So immediately the next day after I woke up around 11 we went out to Gitanjali first for my nail extension, but apparently we realized that we needed an appointment to get the nail extension done at Gitanjali. So unfortunately I could not do it there. Then we went to Rare Rabbit for my fiance's shopping. Of course he had some shopping to do, not for the engagement but for some other stuff. Then you might notice me showing my hands a lot in this vlog because my mehendi color turned out so pretty. Literally everyone complimented me saying that my fiance must love me a lot because my mehendi turned out so dark, and yeah, it really did look very pretty. Then we went to Soos to buy my petticoat. I mean, it's definitely not advisable for any brides to be to leave such important tasks till the last minute, but as you all know with my outfit story it had to be late. So I bought my petticoat. I really liked this kurti there,
My fiance actually insisted that I buy it, so yeah, I bought it. And obviously now I have become an impulsive buyer. After that, we went to this place called Chili's. We have been there like n number of times, and because I was being such a chill bride, I was literally just sitting eating my lunch and enjoying everything, forgetting all the last minute tasks. Meanwhile, my family was running around doing all the work, and I was just relaxing, having a good time with my fiance. I seriously feel so blessed in that matter. We took almost 1.5 hour for our lunch, and after that we finally went out to another place for my nail extension. एंड वहाँ पे पास में ही माई फेवरेट आइसक्रीम पार्लर वॉज देयर, इबाको. एंड इफ यू आर समवन फ्रॉम भुवनेश्वर देन यू शुड डेफिनेटली like visit this ice cream place. You're gonna love it. And there we had this ice cream, and immediately after my nail extension, my nails look so pretty. I was like obsessed how my hands looked that time. I mean, it was such a beautiful thing, and I never found my hands that pretty. Okay, so my nails are done at this point, and I was like very satisfied with my nails, and it was the first time I have like ever done it. And मैंने second time भी कर लिया, and it looks like this. तो मैं बताती हूँ, इसके पीछे भी एक स्टोरी है. तो लाइक मैंने लाइक बड़े बड़े नेल्स कर लिया, एंड एज यू गाइस नो, मैंने अपने लाइक जो रिंग है, एंगेजमेंट की रिंग है, उसको मैच करके अपना जो नेल्स किया था, एंड वो बहुत बड़े बड़े था. लाइक आई डिडंट नो कि ये मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल होने वाला है. लाइक मैं लिटरली कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी. मतलब इतने बड़े बड़े नेल्स के साथ आप कोई भी चीज़ ऐसे पकड़ नहीं सकते हो, आप खा नहीं सकते हो, मतलब बेसिक चीज़ें आप नहीं कर सकते हो. अगर ये चीज़ मुझे पता होती तो लाइक आई वुड हैव लाइक डन अ शॉर्टर नेल लाइक दिस, एंड इट ऑल्सो लुक्स रियली प्रिटी, राइट? तो yeah, so whoever is like going to do their nails for the first time, just like I will let you know कि आप बस शॉर्टर नेल्स के साथ जाना, बिकॉज बड़े बड़े नेल्स के साथ कुछ काम नहीं होता है. इट ओनली लुक्स प्रिटी, बट आप उस प्रिटी के साथ कितने दिन ऐसे रह पाओगे? क्योंकि आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल. आई लाइक टाइप ऑन रेगुलर बेसिस ऑन लैपटॉप. मैं लिटरली अपना लैपटॉप ऑन करने के लिए बहुत टाइम लेती थी, एंड मैंने उस नेल्स को एक हफ्ते रखा, एंड उस एक हफ्ते आई वॉज लाइक वेरी डिपेंडेंट ऑन अदर्स. लाइक इवन टू ईट माई मदर यूज टू फीड मी फॉर 1 week स्ट्रेट. सो इसलिए वो जो नेल्स था, इट वॉज लाइक नॉट दैट लाइक यू नो वेरी यूजफुल फॉर मी. बट आप जब व्लॉग में देखोगे, आई वॉज लाइक कॉन्स्टेंटली लाइक showing my nails like this because it looked really pretty, and I don't want to like deny the fact of like, you know, it looked like absolutely amazing, the nails, right? So yeah, that's the story. And after that I went to Lenskart and to like, you know, put my what contact lens for the first time. तो मेरे जो आईज है ना, उसमें पावर है, ठीक है. मैं तो चश्मिश हूँ ही, आप लोग को पता है. आई मेड अ लेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. अगेन आई डिड अ ह्यूज मिस्टेक, क्योंकि अगर मुझे लेंस पहनना है, राइट, तो मुझे मतलब पहले से मतलब पहन लेना चाहिए था. तो मैंने सब कुछ एंड मोमेंट के लिए छोड़ दिया. तो लाइक आई वेंट टू लेंसकार्ट एंड आई स्ट्रगल्ड सो मच. लाइक मुझे पहली बार लेंस पहनने में मतलब बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि ये मतलब पावर वाला लेंस होता है ना, तो वो थोड़ा सा मोटा होता है. एंड एज यू गाइस कैन सी माई आईज, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है. और वो जो लेंस है वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं. तो लाइक इट वॉज सच अ टास्क टू लाइक वियर अ लेंस फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मैंने जैसे जैसे पहन लिया, बट आई डिड नॉट लर्न हाउ टू लाइक, यू नो, वियर द लेंस. तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, मैंने बहुत रोई थी, एंड माई आईज बिकेम वेरी सेंसिटिव. बट
दैट डे आई वॉर लेंस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मैंने 5 मिनट में ही निकाल दिया क्योंकि इट वॉज लाइक वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मी। एंड अभी तक मैं लेंस यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने 3 महीने के लिए लेंस खरीद लिया है, पर मैंने अभी तक एंगेजमेंट दिन के बाद एक बार भी अपना लेंस यूज़ नहीं किया है। आई थिंक दैट्स वेयर आई कुड हैव लाइक डन इट बेटर। And thanks to my makeup artist, he patiently waited. Because I saw so much tantrums while like wearing that lens. मैं literally अपना आँख दिखा ही नहीं रही थी पहनने के लिए, तो उसने अच्छे से मुझे लेंस पहनाया and like thanks to him and there is an assistant of his, so thanks to her as well. But yeah, that's that. Guys, so we have come to this place to have our evening chai and we will call it a day. I will go to my home and almost all of my work is done, although I did not vlog a lot, but I could complete everything. And yeah, I will talk to you after I reach my home. And after that I came back to home and I did my like a little bit of skincare क्योंकि तब तक मेरे सब रिलेटिव्स आ चुके थे and I am very shy person to vlog in front of them, so that's why मैंने कुछ ऐसा vlog नहीं किया. Now you will see the clips of me getting ready for my engagement with my makeup artist. एंड या उसके बाद मेरी फ़ोन मेरे पास नहीं थी गाइज. लाइक मैं अपना फ़ोन लाइक आई वॉज लाइक टोटली लॉस्ट आफ्टर दैट. ठीक है, कुछ गेस्ट आने लगे थे एंड माई फोन वॉज आई थिंक विथ माई सिस्टर्स. ही टुक माई फोन एंड आई कुड नॉट एबल टू व्लॉग माई एंगेजमेंट. बट जो फोटोग्राफर वाले भैया हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लिए हैं. बट जब मुझे वो रिसीव हो जाएगा आई विल डेफिनेटली अपलोड दैट वीडियोज इन शॉर्ट फॉर्मेट. एंड क्योंकि मैंने ऐसे कुछ व्लॉग नहीं किया तो आई विल जस्ट लाइक शो यू गाइज व्हाट जो कि छोटे मोटे ऐसे वीडियोस मेरे पास है वो मैं आपको दिखा दूंगी एंड ऐसे कुछ कुछ फोटोज आपको दिखा दूंगी. सो या विद दैट आई गॉट एंगेज्ड.